Down. So I think this is the last lecture of this unit solutions. Okay. एंड इस लेक्चर च बेटा ਆਪਾਂ दो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं बड़े इंपॉर्टेंट फर्स्ट इज एबनॉर्मल मोलर मासेस एंड सेकंड ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਹੈ ਵੈਂਟ ਹੌਫਸ ਫੈक्टर ਇਹਨੂੰ स्मॉल आई ਨਾਲ रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है तो अप टिल नाउ ਆਪਾਂ चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लर्न कीतियां पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सी relative lowering in vapor pressure of solvent. Second colligative property was elevation in boiling point of solvent. Third was depression in freezing point of solvent. And last, कल ਆਪਾਂ discuss ਕੀਤੀ osmotic pressure. And चारे properties ਦਾ ਆਪਾਂ derivation mathematical treatment ਕੀਤਾ. Then ਆਪਾਂ learn ਕੀਤਾ कि चारा properties ਨੂੰ ਹੀ use करके ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਨਨੋਨ ਨॉन ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਸੋਲਿਊਟ ਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ खूब सारे अबाउट 50 न्यूमेरिकल्स भी ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ तो ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆ ਗਿਆ ਐਬਨੋਰਮਲ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਐਬਨੋਰਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਨਾ ਹੋਏ है ना तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ तो sometimes what happens that molar masses of solutes determined from measurements of colligative properties are much higher or lower than their actual molar masses ਕੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ suppose ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ NaCl ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋ ਬੱਚੋ ਇਹ ਅਨਨੋਨ ਸੋਲਿਊਟ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ NaCl ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ 58.5 ਹੈ तो एक्सपेरिमेंट्स करके स्टूडेंट्स ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो ਉਹਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ डिटरमिन करना है बट व्हाट हैपेंस कि कोई भी ਉਹਦਾ सही आंसर प्रैक्टिकली डिटरमिन नहीं कर रहे सब ਦਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 58.5 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਅੱਧਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ 27 ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਕੋਈ 25 ਕੱਢ ਰਿਹਾ मतलब 59 ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ CH3COOH ਉਹ ਮੈਂ ਜੇ ਦੇ ਦਿਆਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ 60 ਬਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ 60 ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਭ ਦਾ ਆਨਸਰ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ तो मतलब sometimes practically when we determine colligative properties and find their molar masses of non-volatile solutes what happens कि masses या तो actual mass तो बहुत ज़्यादा घट आ रहे हैं या actual mass तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो की प्रॉब्लम है की रीज़न है रीज़न ਤੁਹਾਡੇ सामने है रीज़न for abnormal molar masses is dissociation or association of solute particles in solution यानी कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ solvent ਦੇ ਵਿੱਚ solute ਨੂੰ dissolve ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ sometimes ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ solute particles ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ solvent ਚ ਜਾ ਕੇ dissociate ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ associate dissociate means टूटना अलग अलग होना एसोसिएट मीन्स जुड़ना कंबाइन करना ठीक है तो ये दो रीजन है बेटा तो पहले आप डिस्कस करते हैं फर्स्ट रीजन डिसोसिएशन कुछ पार्टिकल डिसोसिएट करते हैं तो देखो जिस तरह अपने को NaCl है सोडियम क्लोराइड में एग्जांपल भी ऐसे जी ली सी NaCl ठीक है हम NaCl है सॉलिड कॉमन साल्ट खान वाला लून
You all know when we dissolve it in water, water का मतलब aqueous, AQ. In water, sodium chloride is ionic compound, Na plus ions separate, and Cl negative ions also get hydrated and separate. तो ion separate हो गए. ਹੁਣ NaCl ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚ Na plus ਅਲੱਗ ਹੈ, Cl minus ਅਲੱਗ ਹੈ. ਮੈਂ NaCl ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ. ਆਫ ਕੋਰਸ Na plus Cl नेगेटिव मिलके ही NaCl है, वो दो थोड़ी हो गए है, वो तो आयन हो गए, आयोनाइज होए है. बट वो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ प्रॉपर्टी कोलिगेटिव है. प्रॉपर्टी ने इस गल ਨੂੰ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਬਣੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈ, CaCl2. calcium chloride also dissociates in water. It will give Al3 plus aqueous ions and 2 Cl negative ions. तो दो Cl बन गए, एक Al बनया. एक तो किन्ने बन गए, दो ते एक तीन, एक तो तीन बन गए. तो असी एक मानते पे हैं, वो तीन हो गए. गल समझ आई? तो पार्टिकल का नंबर बढ़ गया. So whenever there is dissociation of solute particles, the number of particles will increase. पार्टिकल की गिनती बढ़ जाएगी, एक तो दो तीन चार. ओके. अच्छा, हुन सेकंड एदा वाइस वर्सा, एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स. कि कुछ सोल्यूट पार्टिकल्स ऐसे है कि वो एसोसिएट करते हैं. एसोसिएट मीन्स आपस च इकट्ठे हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं. जिवें देखो बड़ी कॉमन एग्जांपल है एसिटिक एसिड, CH3 COOH. जिन्हें तुसीं विनेगर कहंदे हो, सिरका कहंदे हो, ये एसिटिक एसिड है. तो एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल वाटर दे विच जाके आपस च ग्रुप बना लेंदे हैं. क्योंकि देखो इस मॉलिक्यूल का आ हाइड्रोजन ओदे ऊपर बैठा है और सामने एदे ऑक्सीजन है. देयर विल बी इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग. सिमिलरली एस ऑक्सीजन दी सामने वाले ओ ऊपर बैठे H नाल. यू नो H बॉन्डिंग उदों बनती है जदों हाइड्रोजन एटम लगा होए, डायरैक्टली बॉन्डेड होए फ्लोरीन नाल या ऑक्सीजन नाल या नाइट्रोजन नाल. आपां सैकेंड या थर्ड लैक्चर च दी गल कीती सी. ठीक है, हुण दिमाग च रख लो. तो H बॉन्डिंग बनन दे करके एसिटिक एसिड दे दो मॉलिक्यूल इकट्ठे रहणगे. कदों? जदों वाटर च पावांगे. जदों एसिटिक एसिड सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो जदों तां ये पाउडर फॉर्म च है, सॉलिड फॉर्म च है, उदों तां इहदा हर मॉलिक्यूल कल्ला कल्ला है. बट जदों असीं इहनूं डिसॉल्व करता वाटर च, तां वाटर च एसिटिक एसिड दे दो मॉलिक्यूल्स ने दोस्ती करके एक ग्रुप बना लिया. दो नूं कहांगे डाई, मॉलिक्यूल नूं कहांगे मर. दिस इज कॉल्ड डाइमर. ये डाइमर बन गया. तीन जुड़नगे तां ट्राइमर, टेट्रामर. बहुत सारे जुड़ जान तां पॉलीमर. हुण तुसीं समझ गए मॉलिक्यूल तां दो सी, पार्टिकल तां दो सी, बट प्रॉपर्टी ने दोवां दे इस डाइमर नूं एक काउंट करना है. ठीक है ना. तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ने पार्टिकल एक काउंट करना है. जो पार्टिकल एक काउंट होएगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी गड़बड़ हो गई, है ना भाई. तो मोलर मास की कैलकुलेशन विच भी गड़बड़ आएगी. दैट इज व्हाई वी गेट एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस. ठीक है. हुण देखो, हुण आपां जिन्ने भी एक्सप्रैशंस पढ़े है ना, जिन्ने भी आपां डेरिवेशंस पढ़े है, पहला आपां पढ़ी प्रॉपर्टी केड़ी, चलो मैं साइड ते लिख दिना एक बारी रफ जिहा तुहानूं याद दिवाउण लई. जस्ट वैसे तुहानूं पता ही है. पहली आपां प्रॉपर्टी कीती relative lowering in vapor pressure, P degree 1 minus PS over
P degree 1 is equal to small m1, ठीक है, over capital M1, small m2 over capital M2 into capital M1 over small m1. 1 for solvent, 2 for solute. ये पहली colligative property थी, relative lowering in vapor pressure. Then ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ second colligative property, ਕਿਹੜੀ ਸੀ, elevation in boiling point. Delta TB is equal to KB into बोलो small m2 over capital M2 into 1000 over small m1. दूसरी colligative property होगी elevation in boiling point. Then ਆਪਾਂ करी तीसरी colligative property. तीसरी colligative property ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, just ऐसे ਦਾ ही modified form है, delta TB ਨੂੰ delta TF कर ਦਿੰਨੇ ਆ, is equal to KF M2 over M2 capital into 1000 over small m1. ठीक है, this is third colligative property. And last ਆਪਾਂ ਕੱਲ डिस्कस की थी osmotic pressure, वो किसी की उसी पाई osmotic pressure is equal to small m2 over capital M2 into 1000 upon volume of solution और नाल सीगा into R, है ना भाई, और नाल टेम्परेचर भी सी R into T. ये अपनी चौथी colligative property होगी, ठीक है। तो एक गल देखो ध्यान नाल, इन्हां सारियां colligative properties च colligative property left side ते है और solute दा molar mass right side ते है और नीचे है, दिसदा पिया तुहानू, molar mass नीचे है ना, नीचे का मतलब है कि जिहड़ा मोलर मास है वो colligative property दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल कि जिहड़ा मोलर मास है ना नॉन वोलाटाइल सोल्यूट दा वो colligative property नाल इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है। मेरा ख्याल सबनू दिस गया की चीज है। तो वैंट हॉफ एक साइंटिस्ट सी, उन्हें बड़ी रिसर्च की थी colligative properties ते solutions ते, तो उन्हें दिता वैंट हॉफ फैक्टर आई, इट इज ए करेक्शन फैक्टर। जिहड़ी वो प्रॉब्लम आ गई कि मोलर मास एग्जैक्ट नहीं आ रहे, तो उन्होंने ठीक करने लई इन्हें एक करेक्शन फैक्टर दिता, इट इज ए करेक्शन फैक्टर शोन बाय स्मॉल आई। व्हाट इज आई? आई इज OCP over NCP। OCP का की मतलब है ऑब्जर्व्ड, CP ਤੁਹਾਨੂੰ पता है colligative property, तो NCP की हो गया नॉर्मल colligative property। ਹੁਣ देखो बिकॉज colligative property is inversely related to M2। M2 मतलब molar mass of solute, चारों से दिखाता कि सोल्यूट दे मोलर मास नाल colligative property इनवर्सली रिलेटेड है। तो जे I इज इक्वल टू OCP ओवर NCP है और जे ਆਪਾਂ CP ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ मोलर मास कर दिए, फिर ये फार्मूला बन जाएगा I इज इक्वल टू NMM ओवर OMM, यानी कि नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। नॉर्मल मीन्स जो हुंदा है, ऑब्जर्व्ड मीन्स जो असी कढ़दे पए हैं, ठीक है।
अच्छा हुण फिर ध्यान नाल समझो कि ਜਿਹੜੀ I है ना ਉਹ OCP ओवर NCP है और ਜਿਹੜੀ CP है ਉਹ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ CP ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ CP घट होएगी तो मोलर मास ਵੱਧ होएगा और CP की चीज है CP मैंने कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे CP प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स ठीक है ਹੁਣ ਜਦੋਂ डिसोसीएशन होनी है ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ NaCl ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਦੋਵਾਂ ਚ CaCl2 डिसोसीएट कर गया ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਜਦੋਂ डिसोसीएशन होनी है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ਵੱਧ जाने हैं नंबर ऑफ पार्टिकल ਵਧਣ ਨਾਲ CP ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ नंबर ऑफ पार्टिकल ਵੱਧ गए CP ਵੱਧ गई और CP ਵਧेगी तो मोलर मास घट जाएगा है ना क्योंकि मोलर मास और CP आपस में इनवर्सली है ठीक तो NaCl का मोलर मास फार्मूला मास 58.5 है बट कोई भी स्टूडेंट केयरफुली एक्सपेरिमेंट करके न्यूमेरिकली सॉल्व करने के बावजूद भी ਉਹਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ 29 ਦੇ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵੱਧ ਗਏ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੱਧ ਗਈ ਮਾਸ ਹਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ CaCl2 ਦੇ ਦਈਏ ਪਾਰਟੀਕਲ 3 ਗੁਣੇ ਹੋ ਗਏ प्रॉपर्टी 3 गुनी हो जाएगी तो मोलर मास अबाउट 3 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा 3 गुना घट जाएगा समझते पे हो एंड जो एसोसीएशन है उदो की होएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर डिक्रीजिंग हुन एसिटिक एसिड का मोलर मास 60 है बट बच्चे 120 कटते पे 118 कटते पे क्यों डबल क्यों कटते पे है क्योंकि दो पार्टिकल मिलके एक बनते पे है पार्टिकल की गिनती हाफ रहेगी CP भी हाफ रहेगी ਤੇ ਮੋਲਰ ਮਾਸ CP ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ तो इस प्रॉब्लम ਨੂੰ दूर ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਂਟ ਹੌਫ ਫੈਕਟਰ I यूज ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ I की चीज है ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल ऑब्जर्व्ड मैंने जो ਅਸੀਂ प्रैक्टिकली ਕੀਤੀ नॉर्मल मैंने जो ਹੁੰਦੀ ठीक ਜਾਂ ਜੇ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਜਿੰਨਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਜਿੰਨਾ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਐਸਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਮਾਸ 60 ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ 120 तो 60 बाय 120 1 बाय 2 यानी कि 0.5 तो एस्टिक एसिड वास्ते I की वैल्यू कितनी है 0.5 ठीक NaCl का नॉर्मल मास है 58.5 साडा आया 29.25 अद्धा आया तो करांगे सॉल्व ते 2 आ जाएगा तो NaCl वास्ते I की वैल्यू 2 होएगी ठीक है तो ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੋਲਿਊਟ ਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਚ ਉਸ ਸੋਲਿਊਟ ਦੇ ਵੈਂਟ ਹੌਫ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਵੈਂਟ ਹੌਫ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੇ ਹੈ ਇੰਨੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਚ 3-4 ਲੈਕਚਰਸ ਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਚ I ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ऑब्जर्व्ड है वही नॉर्मल है सेम ओवर सेम मतलब 1 ठीक है तो मतलब सोल्यूट च ना हो रही है एसोसिएशन ना हो रही है डिसोसिएशन ठीक और ਜਦੋਂ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਆਫ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਕੀ ਹੈ कि if value of I is 1
that means no association or dissociation of solute has taken place. But when value of I is more than 1, ਜੇ I ਦੀ value 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ normal mass ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ observed mass ਘੱਟ ਹੈ। observed mass ਘੱਟ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ observed property ਵੱਧ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। observed property ਵੱਧ ਤਾਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ dissociation। तो ਜਦੋਂ I ਦੀ value 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ ਨਾ that means dissociation of solute has occurred, has taken place। okay, और तीसरी सिचुएशन ਜਦੋਂ I ਦੀ value 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ normal mass घट है तो ऑब्जर्व्ड मास ज्यादा है। ठीक है, ऑब्जर्व्ड मास ज्यादा क्यों आया क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घटी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों घटी है क्योंकि पार्टिकल घटे है। पार्टिकल क्यों घट गए क्योंकि एसोसिएशन होगी, एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट हैज अकर्ड। ठीक है, मेरा ख्याल है तुहानू समझ लग गई होनी गल नू। तो हुण जदों आपां नूं न्यूमेरिकल च नाल I दी वैल्यू भी गिवन होए तो आपां उस I दी वैल्यू नूं इत्थे फिट करांगे। जिवें देखो इस पहले फार्मूले च आपां इस एक्सप्रैशन नूं मल्टीप्लाई कर दांगे I नाल, इत्थे इनटू I, इत्थे भी इनटू I, इहदे विच इनटू I, और ऑस्मोटिक प्रैशर विच भी इत्थे असीं उहनूं मल्टीप्लाई कर दांगे I नाल। ठीक है, तो एक बार चारे फार्मूले आपां ब्रीफ च फिर लिख दिंने। ठीक है, जिस तरह मर्जी लिख लो, मैनीपुलेट करके आपां ड्राइव कीता है तो हुण तक तुहानू बाय हार्ट लर्न हो चुके होने चाहिए है। तो पहला किहड़ा सीगा P डिग्री 1 माइनस PS ओवर P डिग्री 1 इज इक्वल टू I इंटू X1 सॉरी X2। हुण मैं एक्स की वैल्यू नहीं भरी, तुसीं हुण अपने आप भर सकते हो। दूसरा बन गया डेल्टा DB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू M। M की वैल्यू आपे भर लोगे, मोलैलिटी की ऊपर वाला ही बन जाएगा। डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। M की वैल्यू भरोगे ऊपर वाला ही बन जाएगा। और लास्ट आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल टू आई नाल मल्टीप्लाई करता CRT। सी की वैल्यू भर दोगे नंबर ऑफ मोल ओवर वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल की वैल्यू भर दोगे तो वो सारा ऊपर वाला ही बन जाएगा। तो ए बेटा चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टियां सीगियां जिहदे आपां न्यूमेरिकल्स करते रहे, डिराइव करते रहे और फिनिश हो गया सारा काम। हुण तुहाडे उपर है, बुक्स च होर न्यूमेरिकल्स हैगे आ इस तो वध जिन्ने आपां कीते उस तो भी ज़्यादा वो भी कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम होए फिर पूछ सकते हो मैनू। ठीक, और इस पूरे यूनिट का यूनिट 2 सॉल्यूशंस का तुहाडा मैं एक टेस्ट लेना है 25 मार्क्स का। वो टेस्ट होएगा मंडे नू, कल सैटरडे है, परसों संडे है। 2 दिन तुसी इस पूरे लैसन की कोई भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकते हो। कल वाली जूम मीटिंग च आपां वो प्रॉब्लम डिस्कस करांगे, न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम है, थ्योरी की प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक रह गया है या कोई टॉपिक दोबारा समझना है वो तुसी इन्हां 2 दिनां च आपदा कर सकते। ठीक है बेटा, चलो हुण अज दे काम च बोलो कोई प्रॉब्लम। सर जेड़ा तुसी डाइमर समझाया सी। हाँ जी बेटा। सर वो वाला दोबारा समझा दो। डाइमर, ओके। हाँ देखो जी सर। डाई मतलब 2, मर मतलब मॉलिक्यूल। जदों 2 मॉलिक्यूल आपस च एसोसीएट हो जान, किसी तरीके नाल बाइंडिंग करके इकट्ठे रहन लग पैन तो उन्होंने कहते डाइमर।
तीन जुड़ जान ट्राइमर, बहुत सारे जुड़ जान पॉलीमर, ठीक है। तो एसिटिक एसिड की एग्जांपल लई मैं, होर बड़ियां देयर आर सो मैनी एग्जांपल्स। एसिटिक एसिड च की हुंदा है कि वैसे तो एक मॉलिक्यूल है CH3COOH, ਇਹ दूसरा मॉलिक्यूल है, लेकिन सॉल्यूशन च दोवां च H बॉन्डिंग बन गई। H बॉन्डिंग क्यों बन गई? क्योंकि यह ऑक्सीजन है और ਉਹਦੇ सामने आ हाइड्रोजन ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ बैठा है, H बॉन्डिंग की कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है। Similarly, two acetic acid molecules are associating together through two H bonding, so they will remain in groups, दो मिलके रहते हैं, ठीक है भाई। बट प्रॉपर्टी ने नेचर नहीं देखना, प्रॉपर्टी सिर्फ की देख रही है ओदा नंबर। तो जे 100 मॉलिक्यूल्स है तो प्रॉपर्टी ने 50 काउंट करने हैं, 100 च दो का सैट बन गया, ठीक है। जे तीन का बन गया तो पार्टिकल 1/3 रह गए, 4 है पार्टिकल 1/4 है। So whenever there is association or dissociation, we are going to get abnormal molar mass. And how can we correct it? We can correct it by using a correction factor, which is called Van Hoff's factor. And colligative property is proportional to number of solute particles. Particle ज़्यादा, property ज़्यादा, particle घट, property घट. And जो Van Hoff factor आई है, it is a ratio of observed property to normal property, or you can say normal molar mass to observed molar mass, because property and molar mass are inversely related. चारों derivations ये पदों derive करते हैं तो molar mass of solute नीचे आंदा है, M2 नीचे है, M2 नीचे है, M2 नीचे है, M2 नीचे। The molar mass of non-volatile solute is inversely related to colligative property. Okay, that is the reason. हाँ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬੁక్స్ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਮਾਡਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨਿਊਕੋਰਸ, ਦਿਨੇਸ਼, ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਵਗੈਰਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੁక్స్ 'ਚ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਹੈ, डिग्री ऑफ डिसोसीएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसीएशन। वो थोड़ा कंपटीशन लेवल का कहोगे तो मैं तुहानू वो भी कराऊंगा, नो प्रॉब्लम, कोई एडा भी औखा नहीं, वो सौखा ही है, इंटरस्टिंग है, और इस मतलब क्यूरियोसिटी होंगी कि मैनू ये भी आना चाहिए। सुन लो वो टॉपिक की है, वो टॉपिक ये है कि जिवें डिसोसीएशन एसोसीएशन पर पढ़ लिया, हुण ये है कि जे NaCl 100 पार्टिकल है तो 100 दे 100 थोड़ा डिसोसीएट कर जाते हैं। दुनिया च कोई भी प्रोसेस कभी भी 100% कंप्लीट थोड़ी होंगी। तो 100 पार्टिकल्स चों किन्ने डिसोसीएट कीते, टोटल चों किन्ने, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ डिग्री ऑफ डिसोसीएशन अल्फा। ਐਵੇਂ ਜਦੋਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਐਸਿਟਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ 100 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ, 100 ਦੇ 100 ਥੋੜੀ ਜੋੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, 100 ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੀ ਬਣਾਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दा वैन हॉफ फैक्टर आई नाल रिलेशन ड्राइव करीदा है। तो दो रिलेशन होर ड्राइव करीदे है, फिर उन्होंने दे भी 10-10 12-12 न्यूमेरिकल्स अपनी बुक्स च हैगे है, चाहोगे तो वो भी करांगे। चलो अज तुसी पहले इन्ना काम फिनिश करो बेटा, फिर मैंने तुसी दसो जे वो करना होया ते अपने कोल 2 दिन हैगे है, सैटरडे संडे आपां वो भी कर लांगे, और मंडे नूं तुसी टेस्ट भी देना है ना। सर हाँ जी सर बेटा, टेस्ट दस दो के हाँ जी सर टेस्ट दस दो केड़े लेक्चर बनाना, जेड़े 1 to 7 लेक्चर तुसी सेंड कीते ने उन्हां सारे विचों टोटल फुल सब। लेसन बेटा अज तक डिग्री ऑफ ओके सर। जेड़ा आपां अगला पढ़ना है डिग्री ऑफ डिसोसीएशन, डिग्री ऑफ एसोसीएशन, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो इन्हें काम दा मंडे नो टेस्ट 25 मार्क्स। ओके ओके देन गुड बाय बेटा, थैंक यू, सी यू टुमारो। ओके सर।